सबसे पहले 29 जनवरी भारत में पत्रकारिता दिवस, जिसकी शुरुआत हुई थी पत्रकारिता की आज ही के दिन। इस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे इस पूरे आयोजनों के साथ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में जुड़ी मेरठ डॉक्टर उषा साहनी, जो शिक्षक के साथ साथ एक कवयित्री और लघु कथा लेखिका के रूप में भी चर्चित रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और साथ ही आप सभी के स्वागत में चंद शब्द कहें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। मां शारदा के श्री चरणों में 4 पंक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदीन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। मां शारदे को नमन कर जो हृदय में एक भाव आता है, बेहद हर्षित करने वाला, और साथ ही इस मंच से इस प्रकार जुड़ करके सभी मीडिया के विद्वत जनों को देखना, भले ही बहुत छोटी छोटी खिड़कियों में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर बेहद सुखद अनुभूति है। आज का जो विषय है उसको पूरी तरह से उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी से ही आग्रह करूंगी। किंतु जो दूसरा आयोजन हमारा है 25 वर्षों को पूरा करते हुए, कम्युनिकेशन टुडे मीडिया जर्नल, this has really placed a wonderful, I am feeling very much excited and maybe I'm getting nervous because I got associated with Professor Bhanawat and got so much to learn under his supervision and really understood that how he would have taken this journey for such a long duration, and just on the determination once that yes, he is going to start this media journal for all the people who are belonging to this fraternity, be it the research scholars, the students, the academicians or the practitioners, and by his personal aura along with the academic standards, he could maintain that for so long, which is really remarkable and of course worth celebrating these 25 years, the completion of 25 years, and wonderful to be here to celebrate the Silver Jubilee. And I personally believe that Professor Bhanawat has really enlightened this subject, not only with the medium of English language but also Hindi, which was that time when he started, it was not that easy to have every article and research paper and everything in Hindi language, but he had made wonderful efforts, and now people are so convenient in both the languages, as we have Professor KG Suresh with us, who belonging to that South background, still he has such a strong control over Hindi language, which is really appreciable. And we all are fortunate that the topic of the day is going to be discussed by Professor KG Suresh only. Plus to that, the online release of this wonderful journey of 25 years of communication today is going to take place. I'm really happy to be associated with this journal. Plus, I'm blessed that Professor Bhanawat has been a real guide for me for all those years since I have met him. So thanks a lot for your all the support and always giving me that inspiration, sir. And I wish that this online release of the documentary of communication today is going to be a wonderful record for our this online system, as we have been doing all the webinars also under the platform of communication today. Sir, I wish you all the best for another 25 years and much more than that.
and wish to be always in this associated to this media fraternity as well. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity, and lot of welcome to all the people from all the different places and states to join on this platform for this wonderful occasion. Welcome to all once again, and thanks a lot. Over to Professor Sanjeev Bhanawat. धन्यवाद उषा जी, आपने सभी लोगों के स्वागत सम्मान में और साथ में मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मुझे लगता है मेरी इस पूरी यात्रा में, कम्युनिकेशन टुडे की जो 25 वर्ष की यात्रा है, इसमें ऐसे ही बहुत सारे आत्मीय जनों का सहयोग मिला और शायद उसका ही यह प्रतिफल है कि ये यात्रा 25 वर्षों की अपने उस मुकाम को पूरा कर सके। कल्पना नहीं की थी मैंने जब ये शुरू करने का संकल्प लिया था कि ये यात्रा इतनी लंबी और इतनी प्रभावी ढंग से चलेगी, और कल शाम को निर्णय किया, अनायास लगा कि आज का दिन पत्रकारिता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन देश में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, 242 वर्षों की हमारी ये यात्रा, तो हमें लगा क्यों नहीं इसी अवसर को यादगार बनाने की दृष्टि से इस फिल्म को हम आज दिखाएं। इस फिल्म के पीछे मैं पिछले करीब शायद 6-8 महीने से दिमाग में ये परिकल्पना थी, लेकिन जब हमारे विद्यार्थी विनोद सेन, जो संयोग से हमारे बीच में हैं, उन्होंने जिस तरह से मुझे साथ दिया, और जब मैंने कल शाम को कहा कि अपने को दिखाना है आज, तो जिस तरह से तकनीक की अपनी चुनौतियां हैं, कभी नेटवर्क कमजोर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और फिर बार बार मेरा कि इसमें ये जोड़ दो, उसमें से वो कम कर दो, उन सारी चुनौतियों के बीच इन्होंने सुबह करीब 11-11:30 मुझे ये फिल्म भेजी गूगल ड्राइव पर, और उसके बाद मैं ये कोशिश कर सका कि इसको आप तक पहुंचाने के लिए जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं वो हम सारी कर सकें। और मुश्किल से 3-4 घंटे के निमंत्रण पर देश के अलग अलग अंचलों से हमारे इतने सारे मित्र इसके साथ जुड़ गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किन किन के नाम लूं। ढाका से उज्जवल जी, जो कहना चाहिए कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार तो पॉजिटिव है, यो उनको कहीं फील नहीं हो रहा है उस तरह की पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। तो आज हिंदुस्तान में मैं सोच रहा था कि आएंगे तब बात करूंगा, लेकिन फिर कल शाम को इनसे बात हुई, वो हमारे साथ ढाका से जुड़ते हैं। सिलचर से प्रोफेसर जीपी पांडे, लखनऊ से प्रोफेसर संतोष तिवारी, पूना से प्रोफेसर किरण ठाकुर जी, जो स्वयं टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत लंबे समय तक रहे और मास कॉम डिपार्टमेंट को हेड भी किया, और उनके साथ मेरी एक बहुत बहुत कई मुद्दों पर चर्चाएं होती रही, और कम्युनिकेशन टुडे के लिए आप रेगुलर कंट्रीब्यूट भी करते रहे। तो जयपुर से राजेंद्र बोड़ा जी, जो कम्युनिकेशन टुडे के साथ अभी कुछ समय पहले ही आपका एक तरह से लेखकीय सहयोग जो है मुझे मिला। तो कहने का मतलब यह है, राकेश गोस्वामी है, संजीत जी से ऑनलाइन दोस्ती हमारी हुई है, वो भी हमारे साथ में है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा और इतने सारे विद्यार्थियों का इसके साथ जुड़ना औपचारिक निमंत्रण पे, मुझे लगता है शायद यही हमारे जीवन की पूंजी है, विशेषकर मेरे लिए, कि ये जो आत्मीय स्नेह है, एक पत्रिका के प्रकाशन को सेलिब्रेट करने के लिए मौसम की उन प्रतिकूलताओं के बावजूद देश के अनेक अंचलों से मैं देख रहा हूं लगातार, अभी उड़ीसा से ब्रिजमोहन साहू ने ज्वाइन किया, जो स्वयं वहां एक अखबार के साथ जुड़े हुए। केवल मेरा इनसे परिचय बहुतों के साथ केवल इसी ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ है, और ऐसा लगता नहीं कि कभी मिले नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो एक बॉन्डिंग फील होती है, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा में मेरी वही ताकत है। प्रोफेसर के जी सुरेश जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, लगभग 1 दशक पूर्व IMC के जब वो DG थे, तब जयपुर में इनके साथ एक मुलाकात हुई, तब शायद एक कल्पना नहीं होगी कि इतने सारे मंचों पर मुझे इनका सानिध्य मिलेगा। एक कुलपति के रूप में उनकी व्यस्तता का एहसास मुझे सदा बना रहता है, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ती है अपने इन आयोजनों में उनके वैचारिक मार्गदर्शन की, उनके सहयोग की, बिना झिझक फोन करता हूँ। और मेरे ख्याल बिना ये पूछे कि साहब कौन सा आयोजन है, क्या है, उनका सिर्फ ये होता है कि आपने कह दिया तो मेरी उपस्थिति रहेगी। तो एक इस प्रकार का सहयोग मिलना, और जिस तरह से उन्होंने IMC और पत्रकारिता के विश्वविद्यालय को एक दिशा दी है, मुझे लगता है ये देश के लिए एक अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से प्रैक्टिसिंग फील्ड से बाहर आकर के आपने एकेडमिक्स को जो ये कंट्रीब्यूट किया है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए भी एक असट है, मार्गदर्शन है, कि उन्होंने नए पाठ्यक्रमों से लेकर के उस मीडिया शिक्षा की उन सारी जो हमारी परंपराएं हैं उनको संरक्षित करने की दिशा में, और विशेषकर भोपाल में जो आपने प्रयोग किए हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि अद्भुत है। जब भी कभी इनसे मुलाकात हुई, उनका वो जीवंतता, उनका उत्साह, और यूँ कहूँ कि इस प्रकाशन के प्रति जो उनका एक लगाव, जब जब भी इसके बारे में बात हुई है मैंने महसूस किया। तो मैं भी इसको मेरे जीवन की एक, जैसा मैंने कहा कि पूंजी मानता हूँ,
और इस अधिकार से कल शाम को ही मैंने उनसे निवेदन किया था। मैंने कहा आज का दिन जिस तरह का आपकी बहुत व्यस्तता होगी, लेकिन शाम को कुछ समय दिया आप मुझे दे सकें। उन्होंने समय दिया, मैं उनके प्रति भी अपना आभारी हूँ और उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ सभी मित्रों के साथ। अब बिना अधिक समय गंवाए, क्योंकि हम सब उत्सुक हैं उस फिल्म को देखने के लिए, मेरी शोधार्थी पृथ्वी सेंगर, जिनको अभी डॉक्टरेट मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक मिल जानी चाहिए, रिपोर्ट्स आने की प्रतीक्षा में है, लेकिन इसी बीच उनको IMT यूनिवर्सिटी मेरठ में वहाँ लेक्चरशिप का उनको एक अवसर मिला है, तो वहाँ इस समय अध्यापन कार्य कर रही हैं। करीब पिछले 4-5 साल से जयपुर में ये UGC JRF के रूप में इन्होंने यहाँ रह करके काम किया और पूरा इसका जो हमारा वेबिनार का तकनीकी पक्ष है वो संभाल रही है पिछले 2 साल से। तो मैं पृथ्वी से अनुरोध करूंगा कि वो इस फिल्म को यहाँ ऑनलाइन शेयर करें। लगभग आधे घंटे की फिल्म है, इस फिल्म को हम देखेंगे और उसके बाद आप सभी की टिप्पणियां और आशीर्वाद। जिस प्रकार संजीव भानावत जी का व्यक्तित्व अनपैरेलल है, उसी तरह आज का ये आयोजन और ये उनका योगदान, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर संजीव भानावत और उनके टीम को और कम्युनिकेशन टुडे को मैं बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। I'm so delighted that Communication Today is completing its 25th year of its publication. किसी भी प्रकाशन के लिए 25 साल का सफर पूरा कर लेना निश्चित तौर पर गर्व और सम्मान का एक अनूठा पल है। इस गौरवशाली पल में अतीत के उतार चढ़ाव तो नजर आते ही हैं, साथ ही आने वाले कल के सुनहरे लम्हे भी झिलमिलाते दिखाई देते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रकाशित होने वाले मीडिया जर्नल कम्युनिकेशन टुडे ने हाल ही में 25 साल का अपना गौरवशाली सफर पूरा किया है। ऐसे समय में जबकि हालात और वक्त की आंधी में बड़े बड़े मीडिया घराने ध्वस्त हो रहे हैं या अपने मूल्यों को तिलांजलि देकर बाजार के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसे में 25 वर्षों से जारी कम्युनिकेशन टुडे का सफर न सिर्फ उम्मीदें जगाता है, बल्कि घनघोर तूफानों का सामना करने वाले दिए की कहानी भी याद दिलाता है। 2.5 दशक की इस शानदार यात्रा के दौरान कम्युनिकेशन टुडे ने न सिर्फ मीडिया की दुनिया को गहराई से खंगालने की कोशिश की है, बल्कि मीडिया शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश और दुनिया में जो नए प्रयोग किए गए हैं, उन्हें भी लाखों पाठकों तक पहुंचाया है। कम्युनिकेशन टुडे के संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत खुद भी लगभग 4 दशक तक मीडिया शिक्षा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक ही है कि उन्होंने कम्युनिकेशन टुडे के विभिन्न अंकों में मीडिया से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर शोधपरक और अत्यंत उपयोगी सामग्री का संयोजन किया। मीडिया जगत में और शैक्षणिक संस्थानों में कम्युनिकेशन टुडे के अंकों को बहुत सराहा गया और यही कारण है कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2011 में इस पत्रिका को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में एक्सटर्नल मैगजीन कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया। कम्युनिकेशन टुडे के अकादमिक योगदान पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया गया और आज स्थिति ये है कि देश के प्रसिद्ध पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और मीडिया शिक्षकों के बीच कम्युनिकेशन टुडे का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। कम्युनिकेशन टुडे ने अपने प्रकाशन के 25 वर्षों में कोविड-19 एवं मीडिया कर्मियों के लिए आचार संहिताओं का संकलन, इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, भारत में मीडिया का परिदृश्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार साहित्य संदर्भिका, जर्नलिज्म एंड PR एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एंड मीडिया आदि विषयों पर केंद्रित विभिन्न विशेषांकों का समय समय पर प्रकाशन किया। कम्युनिकेशन टुडे ने अपने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भारत में मीडिया शिक्षा की एक सदी की यात्रा पर 2 महत्वपूर्ण विशेषांकों का प्रकाशन भी किया। मीडिया जर्नल की ये यात्रा आज भी उसी रफ्तार और उसी उत्साह के साथ जारी है। जैसा कि संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत कहते हैं, 25 साल का ये सफर हमारी एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। प्रकाशन यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसे रोमांच की अनुभूति मुझे हो रही है जिसकी कल्पना मात्र से मन गुदगुदाने लगता है। वर्ष 1997 का जनवरी महीना, जब कोलंबो में दक्षिण एशियाई मीडिया शिक्षकों का एक अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक तकनीकी सत्र में जब मैं अपनी बात रख रहा था, तब वहां पर अधिकांश वक्ताओं ने एक चिंता प्रकट की कि मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में जर्नल्स का अभाव है, एकेडमिक जर्नल्स का अभाव है। न जान से कौन सी ऐसी शक्ति का मुझे एहसास हुआ और मैंने वहां कहा कि हिंदुस्तान में जाकर के मैं ये संकल्प करूंगा कि मीडिया में एक जर्नल का प्रकाशन करूं, और उसी संकल्प की परिणति थी कम्युनिकेशन टुडे के प्रकाशन की। हालांकि टाइटल मुझे अप्रूव हो गया था आरएनआई से, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने उसी के साथ की। शायद मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत, जो स्वयं राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और मेरी माता डॉक्टर शांता भानावत, जो स्वयं प्रिंसिपल थी, दुर्भाग्य से बहुत जल्दी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उन पुण्यात्माओं का मेरे प्रति आशीर्वाद रहा और मैंने ये अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में न जाने कितने लोगों का मुझे साथ मिला, संबल मिला, उन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाया। डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, वे भी आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनका मार्गदर्शन और पग पग पर प्रेरणा मुझे मिलती रही। आर्थिक चुनौतियां, लेखकों का अभाव, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखा। आज इन 25 वर्षों में स्थिति यह बनी कि देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से मुझे लेखकीय सहयोग नहीं मिला, जहां मीडिया प्रकाशनों की इस भीड़ में बिना शुल्क लिए लेखों का प्रकाशन करना लगभग असंभव हो गया है। वहीं मैंने ये प्रयास किया कि मैं अपनी इस यात्रा को अनवरत जारी रखूंगा और कभी किसी से मैं आर्टिकल प्रकाशन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूलूंगा। एक दौर आया जब इसकी मैंने वेबसाइट भी बनाई और लगभग 1 दशक के सारे इश्यूज उस वेबसाइट पर आज उपलब्ध हैं। कम्युनिकेशन टुडे के बहुत सारे विशेषांकों का प्रकाशन किया। आज इस जर्नल ने पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कोरोना का वो दौर जब सब कुछ थम सा गया था, ऐसे दौर में हमने वेबिनारों की एक श्रृंखला शुरू करके मीडिया संबंधी विषयों पर शैक्षणिक विचार विमर्श की इस यात्रा को कम्युनिकेशन टुडे के मंच से जारी रखा, जो सारे हमारे परिसंवाद और चर्चाएं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कम्युनिकेशन टुडे की इस यात्रा में जिन लेखकों का, जिन मित्रों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, आज इस 25वें वर्षों की ऐतिहासिक पलों में मैं उन सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं, और जिन्होंने अपने वीडियो संदेशों के माध्यम से भी मेरे इस यात्रा के लिए निरंतर जारी रहने के लिए शुभकामनाएं प्रकट की हैं। और मैं पॉपुलर प्रिंटर्स के श्री निर्मल गोयल के सहयोग को कैसे भुला सकता हूं। इन 25 वर्षों में प्रिंटिंग की तकनीक जिस तरह से बदलती रही, तो उस आधुनिकतम तकनीक का सहारा लेते हुए जिस तरह से मुझे इन्होंने इस मुद्रण में इसके नयनाभिराम और सुरुचिपूर्ण प्रकाशन में सहयोग दिया, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सहयोग रहा, मेरा संबल रहा। कम्युनिकेशन टुडे की ये यात्रा, मैं तो कई बार ये महसूस करता हूं कि एक बच्चे की तरह से मैंने इसको पाला है। हर नए अंक का प्रकाशन, 25वें वर्षों में एक मीडिया शिक्षा पर विशेषांक, मीडिया एजुकेशन पर विशेषांक और 2 इसके सामान्य विशेषांकों का प्रकाशन। ये देखिए 4 अंकों का प्रकाशन मेरी इस रोमांच को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। हर अंक के प्रकाशन के साथ मुझे एक नए सृजन की अनुभूति होती है। मित्रों, आप सभी का यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मैं इसे कभी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। पूरा विश्वास है कि मीडिया शिक्षा, शोध, अनुसंधान के क्षेत्र में न सिर्फ देश भर में शोध कर रहे विद्यार्थियों, वरन प्राध्यापकों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों के भी विचारों को, उनके शोध निष्कर्षों को इस प्रकाशन के माध्यम से मैं यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करता रहूंगा, इस उम्मीद में कि मेरी यह यात्रा मेरे जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस संबल के लिए। मीडिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सामने नजर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए हमें अभी और आगे जाना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने गुजरे कल से प्रेरणा और सबक लेकर हम अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकें।
मीडिया, सूचना और संचार संगठनों की दुनिया में कम्युनिकेशन टुडे के इस अप्रतिम योगदान को लेकर मीडिया कर्मी और मीडिया शिक्षकों का क्या नजरिया है, आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। चलिए साहब, ये छोटा सा प्रयास, और इस प्रयास के पीछे इसके पूर्व के अपन आगे बढ़े। मेरे ख्याल से सर 2 मिनट के लिए सब लोग अनम्यूट करके थोड़ा तालियां बजाएं तो बहुत सुंदर लगेगा। सही है। नमस्कार। इस सारे प्रोजेक्ट के पीछे जो मेरे साथ रात दिन लगे रहे विनोद सेन, और मुझे लगता है शायद 2007-8 के वो स्टूडेंट थे, और तब से न जाने कितने मंचों पे डॉक्टर उमाशंकर पांडे को ध्यान होगा, जब वो रिफ्रेशर कोर्स में हमारे यहाँ पर थे, तब किस तरह से पूरी रात बैठ करके विनोद ने वो फिल्म बनाई थी। और जब अपना रिफ्रेशर कोर्स का वैलिडिटी फंक्शन था, उस पर हमने 21 दिन के उस पूरे हमारे जो गतिविधियां थी उसको विजुअली हमने उसको प्रस्तुत किया था वहाँ। ये सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं अब। तो विनोद सेन के प्रति मैं अब चूंकि विद्यार्थी हैं, आभार तो क्या प्रकट करूँ, यही आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से इस विभाग में पढ़ करके अपना एक फील्ड बनाया है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैं उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि वो नित्य नए प्रोजेक्ट्स के साथ, और विनोद के साथ मिलकर हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी फिल्म बनाई थी उसके 75 वर्षों के ऊपर। वो फिल्म भी काफ़ी चर्चित रही और अच्छा उसका भी रेस्पॉन्स मिला। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और एक छोटा सा सर्टिफिकेट मैंने तैयार किया था, यदि पृथ्वी उसको दिखा सकें उस सर्टिफिकेट को, तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक ऑनर होगा। पृथ्वी, मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ, ये एक सर्टिफिकेट मैंने आज ही तैयार कराया था कम्युनिकेशन टुडे की ओर से विनोद के सम्मान में। और चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विनोद, कुछ कहना चाहो तो तुम्हारी बात करें, उसके बाद फिर केजी सुरेश जी और हमारे अन्य मित्र अपनी टिप्पणियां और जो भी बात कहना चाहे। विनोद, सुन रहे हो मुझे? जी सर। हाँ, कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो इस अवसर पे? बस सर, आपका ही सिखाया हुआ था, कुछ सीखा आपसे तो कर पाए, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया। वीडियो ऑन करो ना अपना। यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आगे भी काफी प्रोजेक्ट्स करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर केजी सुरेश जी से कि भाई इस अवसर पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर केजी सुरेश। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, जी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वद्जन, अगर मैं सभी का एक एक करके नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि जो समय मुझे दिया गया है वो उसी में निकल जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर संजीव भानावत जी ने अगर एक मीटिंग किया हो, चाहे वो ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस हो या ऑनलाइन बैठक हो, वहां फिर जगह नहीं मिलती है। तो मैं सभी इतने अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने पूर्व सहयोगियों को मैं देख रहा हूं, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आज भारतीय समाचार पत्र दिवस है, इंडियन न्यूज़पेपर डे, क्योंकि कि आज ही के दिन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने पहला समाचार पत्र हिंदुस्तान में जो बंगाल गजेट है उसका आज ही के दिन प्रकाशन हुआ था। हम लोग प्रेस फ्रीडम डे अलग से मनाते हैं, हम लोग नेशनल प्रेस डे मनाते हैं प्रेस काउंसिल की स्थापना को लेकर, लेकिन उदंत मार्तांड जिस दिन से प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता में शुरू किया,
उसको भी हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज ही के दिन ये यात्रा भारतीय मीडिया की 1780 में शुरू हुई थी और इससे बेहतर कोई आयोजन हो नहीं सकता कि आज हम एक ऐसे संस्था, मैं तो प्रोफेसर संजीव भानावत जी को तो व्यक्ति नहीं संस्था मानता हूं, उनके द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन, और मैंने अपने वीडियो में भी कहा और हर जगह कहता हूं, उदाहरण के तौर पर मैंने कम से कम 3 बड़े संस्थाओं से, मैं अध्ययन संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा और वहां मैंने देखा कि वो निरंतरता बनाए रखना कितना कठिन है। उन सभी विश्वविद्यालय या संस्थाओं से बहुत प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन कभी 2 साल के लिए बंद, तो कोई 5 साल के लिए बंद, कोई 10 साल के लिए बंद। वो जो नियमितता, दैट रेगुलरिटी, दैट फ्रीक्वेंसी को बना के रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पत्रिका तो कोई भी शुरू कर सकता है, हम सब शुरू कर सकते हैं, आजकल फैशनेबल हो गया है कि हमने एक और पत्रिका शुरू कर दी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना और उसका क्वालिटी को मेंटेन करना, ये दोनों सबसे बड़ी चुनौती है। उसमें कौन कौन से विषय उठाए जाते हैं, वो एक रूटीन का पार्ट न बनकर हर इश्यू को स्पेशल इश्यू बनाना, कि हर इश्यू एक कलेक्टर्स इश्यू है, जहां तक कम्युनिकेशन टुडे। और ये तभी हो सकता है जब वो पैशनेटली आप उसके साथ जुड़े हो। वो एक सरकारी काम हो जाता है तो उसमें वो बात नहीं रहती है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा। और वो मैंने भानावत साहब देखा है। मैं एक आध उदाहरण देना चाहता हूं, उनका जो जज्बा है उसके साथ जो जुड़ी हुई है। एक बार हम लोग अमरकंटक में थे, भानावत जी काफी देर से पहुंचे, देर रात हो गई थी, उनकी ट्रेन या फ्लाइट से वो उतरे, शायद रायपुर से आए वो, और वहां से वो बाय रोड पहुंचे। काफी समय लगा उनको अमरकंटक में, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो वहां तो हम भोजन कर चुके थे और हम अपने टी शर्ट और पैजामे में थे और भानावत जी एंटर कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति देर रात 6-7 घंटे की रोड जर्नी के बाद पहुंच रहा हो, उसको पहला ध्यान में यही होगा कि पहले थोड़ा भोजन कर लूं, उसके बाद विश्राम करूं, क्योंकि अगले दिन सुबह सेमिनार है। उन्होंने तुरंत, सर 1 मिनट रुकिए, उन्होंने रोका मुझे, अपना बैग खोला, कम्युनिकेशन टुडे निकाला और किसी को मोबाइल दिया और कहा कि चलिए फोटो लीजिए, और उन्होंने फोटो लिया। अच्छा, मैंने कह दिया कि अब भानावत जी, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि हमारे लिए अग्रज हैं और हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं कह दिया अब आप जाइए, भोजन करिए। अरे बचा है कुछ? करेगा, अरे बिल्कुल आपके लिए बचा के रखा है, हम तो आपके लिए वेट कर रहे थे, लेकिन आप लेट हो रहे थे, तो आप भोजन करिए और हम तब तक थोड़ा सा फ्रेश होके, मतलब थोड़ा कमरे में वगैरह थोड़ा घूम के टहल के आते हैं। तो हम जाके कमरे में बैठे और वो भोजन भी कर रहे थे। हमने 2 मिनट के अंदर देखा कि सोशल मीडिया में सब डल चुका था फोटो। ये के साथ जो भानावत जी काम को करते हैं, इसमें इतना ऊर्जा हम लोगों को मिल जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं अपने टीम को, चाहे वो भारतीय जनसंचार में हो या यहां अपने टीम को बताता हूं कि देखिए, पैशन नहीं होगा तो एक व्यक्ति के पैशन के वजह से वो मैगजीन जो है सिल्वर जुबली आज मना रही है। रजत जयंती मनाना एक पत्रिका के लिए जो एक व्यक्ति अपने परिश्रम से चला रहे हैं, टीम है उनके साथ, उषा जी हैं और लोग हैं संपादकीय, लेकिन ड्राइविंग फोर्स नहीं निकलना है समय पर इतने व्यस्तताओं के बीच में, यूजीसी के इंस्पेक्शंस, देश भर में सेमिनार, वेबिनार, यात्राएं, इन सब के बीच में उस रेगुलरिटी को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, मैं समझता हूं कि उनके जज्बे को मैं सबसे पहले सलाम करता हूं। और हम सब जो है, मतलब उनके कायल हैं, उनके मुरीद हैं,
कि ये जो पैशन के साथ वो जो काम करते हैं। और कम्युनिकेशन टुडे, किसी ने सही कहा, मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ संजीव भानावत जी का पर्यायवाची बना है, मीडिया में शोध के साथ पर्यायवाची बना है कम्युनिकेशन टुडे। इट हैज बिकम सिनोनिमस विद मीडिया रिसर्च एंड पब्लिकेशन, क्योंकि मीडिया में बहुत कम शोध पत्रिकाएं हैं। कम्युनिकेटर हुआ, संचार माध्यम हुआ, मीडिया मीमांसा हुई, इस तरीके से बहुत कम पब्लिकेशंस है जिनका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता है। यूजीसी केयर में भी हैं, और यूजीसी केयर जब नहीं भी थी तब भी कम्युनिकेशन टुडे की अपनी एक पहचान बनी हुई थी। लोगों ने उसको एक रेफरल जर्नल के रूप में उसको देखा है। मैंने कई पीएचडी के स्कॉलर्स ने अपने रेफरेंसेस में कई आर्टिकल्स कम्युनिकेशन टुडे से नियमित रूप से कोट करते रहते हैं, जो मैं समझता हूं कि उस जर्नल की उपलब्धि है। मैं 2-3 बातें और कहकर, क्योंकि आज और भी वक्ता हैं, मैंने देखा है कि मीडिया एजुकेशन के प्रति जो प्रतिबद्धता है प्रोफेसर संजीव भानावत का, मेरे एक गुजारिश पर, क्योंकि यहां मेरे आईएमसी के पूर्व सहयोगी भी बैठे हैं, उसमें 2 रीजनल डायरेक्टर्स बैठे हैं कैंपसेस के, आज यहां उपस्थित है इस कार्यक्रम में, और मृणाल जी तो उसके गवाह है कि हमने किस तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट फॉर आईआईएमसी टू बिकम ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हमने कैसे ऑब्टेन किया। उसमें भानावत जी की टीम, हमने भानावत जी को उस टीम में शामिल किया था। प्रोफेसर मानसिंह परमार थे उसमें, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी थे उसमें। हमने किस तरीके से उसको पूरा उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया था, और वो संभव नहीं हो पाता अगर प्रोफेसर भानावत जैसे लोग उस वक्त सक्रिय होकर। मुझे उम्मीद है कि जो हमने एक, जिसे कहते हैं कि एक शुरुआत की, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट तो आज से 4 साल पहले मिल चुका है। अब सिर्फ उसको क्रियान्वयन करना बाकी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का कोर्सेस हमने अप्रूव करा लिए थे, लगभग 6 कोर्सेस यूजीसी से अप्रूव करा दिए थे, बिल्कुल अलग डी नोवो कैटेगरी में। और उस वक्त भी मैंने देखा कि किस तरीके से सुबह ढेंकनाल पहुंच के शाम की फ्लाइट से दिन भर के इंस्पेक्शन के बाद किस तरीके से वो मतलब आए, फिर बैठ के ली। तो वो उनका कोई ऐसा कुछ नहीं था, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो मीडिया एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने देखा जितने नवाचार उन्होंने किए। यहां राकेश गोस्वामी भी हैं, हमारे युवा मित्र। हमने उन दिनों यूनिसेफ का प्रोजेक्ट साथ में किया था, और उस जूरी में हम थे, अशोक ओगरा साहब भी थे, और राकेश गोस्वामी उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स में थे, और उनको जो है वो यूनिसेफ का फेलोशिप मिला था। और मेरे ख्याल से तबीना भी थी, उनको भी मिला था, तबीना को भी मिला था। और इस तरीके से लगातार सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक सीमित न रहकर मीडिया एजुकेशन को, मीडिया फेलोशिप हो, यूनिवर्सिटी हो, पब्लिकेशन हो, लगातार एक जिसे कहते हैं कि कार्यरत रहना और उसको एक नए मुकाम पर पहुंचाना, इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका जो है कम्युनिकेशन टुडे की रही है, भानावत जी की रही है। और कम्युनिकेशन टुडे उसका एक प्रतीक है, उनके उस कमिटमेंट का। और हम आप सब कई, इवन जब मैं मीडिया में था, सक्रिय मीडिया में, तब भी कम्युनिकेशन टुडे पढ़ता था, क्योंकि मैं पढ़ाता था। मैं आईएमसी में तो मेरा कई वर्षों से, कई दशकों से मैं वहां टीचिंग करता रहा था एज ए विजिटिंग फैकल्टी। मैं माखनलाल में एडजंक्ट प्रोफेसर होता था, फुल मतलब जॉब करते हुए भी एज ए जर्नलिस्ट। तो उस वक्त भी कम्युनिकेशन टुडे से जो है रूबरू होता था, लाइब्रेरी में हम लोग उसको पढ़ते थे। और अब उसको नए कलेवर में समय के अनुसार संजीव जी और उनका टीम उस दिशा में काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मीडिया के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उसको, उन विषयों को लेकर भी
कम्युनिकेशन टुडे जो है नए शोधार्थियों को अवसर प्रदान करेगा। मीडिया एजुकेशन में मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे देश में टीचिंग एंड लर्निंग में कोई कमी नहीं है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स में अगर आज नहीं हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि यहां वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। चाहे वो नासा हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हो, सुंदर पिचाई हो या पराग अग्रवाल हो, कोई भी क्षेत्र, सिलिकॉन वैली हो, सिंगापुर और लंदन के हॉस्पिटल्स हो, आपको हर जगह इंडियन प्रोफेशनल्स मिलेंगे और वो सब भारत से सीख कर गए हैं, भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं से निकल कर गए हैं। तो टीचर्स का कमिटमेंट और स्टूडेंट्स का टैलेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई चीज कमी है हमारे विश्वविद्यालयों में तो वो शोध है, रिसर्च है, और वो रिसर्च को ढूंढ कर ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो रिसर्च का माहौल, रिसर्च का एक जो एम्बियंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अक्सर पुअर फंडिंग के वजह से रिसर्च का एक शोध का वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और के अंतर्गत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई है। आपने वीडियो में देखा होगा, जहां भी मौका मिलता है तो और किस शुद्धता के साथ और किस तरीके से एक एक शब्द का ये चयन करते हैं, ये तो मतलब बहुत सीखने वाली बात। हमारे साथ एक ओएसडी हुआ करते थे उस समय के मुख्यमंत्री के, और वो काफी बताया कि अरे भाई हम तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को बुला लेंगे और वो। जब सर के पास गए तो ये पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पावर को कुछ उस तरीके से जो बाकी लोग जैसे पीछे दौड़ते हैं वो बिल्कुल उससे अछूता। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना बड़ा मंत्री क्या है, वो काम के पीछे जो उनका एक जो लगन हमने देखा, और वो जो टीम तैयार हुई और काफी सारी चीजें हमने जो की। हम तो कहते हैं काफी नाम है, मैं सब सारे नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो नेटवर्क बना और जिस तरीके का काम चला, तो ये काफी श्रेय जाता है। और सिर्फ एक रिफ्रेशर कोर्स नहीं, एक चीज जो कि मैं काफी लोगों में समानता देखता हूँ, सुरेश जी भी यहाँ पर हैं, बनावत जी हैं, मृणाल दा है, उज्जवल दा थे, और भी जीवी पांडे सर, काफी समानताएं मैं अब ये शब्द यूज कर रहा हूँ अच्छे लोगों में होती है। एक तो ये कि वो लोगों की बुराइयों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सीख की बात है, क्योंकि जैसे आप बढ़ते रहते हैं तो आपको लोग आपकी कई चीजों पर उनका नजर सही नहीं रहता, लेकिन किस तरीके से उसको इग्नोर करते हुए अपने पॉजिटिव काम को आगे बढ़ाना, ये मुझे आज भी याद है। और मेरे ख्याल से घंटों सर के साथ अलग अलग शहरों में अलग अलग मंचों पर अलग अलग जगहों पर बैठने का मौका मिला। आज तक सर ने किसी के बारे में भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा है, और ये चीज और भी काफी लोगों पर, जैसे मैंने कहा, लागू होती है। तो ये सब चीजें जो सीखनी चाहिए। दूसरा, जो जूनियर को जो सम्मान देना, और ये सब चीजें हम राकेश जी अभी ग्रुप में नहीं है, ये हम पीछे बात करते हैं। पहले दिन से जब मैं मिला, आज से 11 साल पहले, तो मैं और भी अभी तो खैर यू कैन कॉल मी मिडिल एजेड, लेकिन तब तो आई वाजंट सो, आई वाज क्वाइट यंग। तब भी लोगों को जी करके संबोधन करना, हर व्यक्ति को जिस तरीके से, और हर एक के विचार को, चाहे वो जिस स्तर पर भी हो, उसके विचार को सुनना और उसको जितना हो सके एनकरेज करना। आज भी कई चीजें जो हम कर पाते हैं, जिनमें से 3-4 लोगों के फोन मुझे पता है अपने आप आते हैं। सुरेश जी हैं इसमें, बनावत जी हैं, मृणाल और भी हैं कुछ लोग, वो आपके अच्छे काम को एनकरेज करते हैं और क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ये अलग अलग चीजें, तो ये जो पर्सनालिटी की चीजें हमने सीखी है, शायद ये आप में अंतर्निहित है, ये नेचुरल होगा, लेकिन हमको जो ये दिखता है, ये सब चीजें जो साथ में मिली हैं, और उसका ये शायद परिणाम है कि 25 साल की निरंतरता हमने इसमें देखी, और कभी भी एक भी ऐसा इश्यू नहीं था जिसका क्वालिटी कभी गिरा हो। बहुत प्रोफेसर के जी सुरेश ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, वो थी ये सब जो वर्ल्ड रैंकिंग्स में हमारे यहाँ साइटेशन इंडेक्स पर नंबर नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एक दिक्कत ये है कि भाई हम एक दूसरे के काम को भी साइट नहीं करते हैं, तो क्यों ना करें। ये तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों पर बात करना काफी आवश्यक भी है। और मैं जब भी पीएचडी स्कॉलर्स के पास कोई भी मौका मिलता है, ये कहता हूँ कि भाई अब जब तक एक दूसरे के काम को आप नहीं साइट करेंगे, आप हर किसी चीज पर आप किसी यूरोपियन या फिर उन लोगों की बात करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, दूसरी बात है जो हम किस तरीके से किसी विषय में जानते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अब ये सारी चीजें, ये सारा दायरा तय किया हुआ है यूरोपियन या फिर अमेरिकन स्ट्रक्चर्स में। तो हम उन्हीं सब चीजों को भारतीय स्ट्रक्चर में हम उसी के द्वारा मापने की कोशिश करते हैं। हमारी जो एक अपना सोचने का तरीका है, हमारे जो एक अपने तरीके होने चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें, मान लीजिए रिलीजन एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, हमारे कल्चर के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे बैकग्राउंड के साथ। नेशनलिज्म, हमारे यहाँ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले से भी था। एक डायना एक की किताब आई थी, इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी, जहां पर उन्होंने कहा कि ये जो तीर्थ यात्राओं की वजह से जो हमें एक आपस में एक इमेजिन्ड कम्युनिटी का एक भाव बना, उससे ये काफी ज्यादा चीजें आगे बढ़ी। तो हम अपने तरीके से जो सोच सकते हैं जिन चीजों को, वो हमें और बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर सिर्फ उस एपिस्टेमोलॉजी पर देते रहे तो तब हम वही सब इजम्स और वॉजम्स को अपने स्ट्रक्चर में हम ढूंढते रहेंगे। वो मेरे ख्याल से काफी सही नहीं होगा। तो काफी कुछ करने को है, काफी कुछ सीखने को है, और ऐसे ऊर्जावान अग्रज अगर हमारे साथ रहे तो बिल्कुल बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हम अपने अपने स्तर पर ये करते रहेंगे, और जब भी हम किसी चीज में अगर मायूसी मिलती है या सेटबैक मिलता है, तब हम इन लोगों का स्मरण करते हैं, कैसे इन लोगों ने या फिर उन्होंने क्या किया होता, क्योंकि हर आदमी अपने अपने संघर्ष में कार्यरत है। हमने देखा है काफी क्लोजली, लेकिन किस तरीके से इन्होंने इस संघर्ष के परे जाकर अपने आप जो लक्ष्य है, जो मूल काम है, इस पर तवज्जो रखा। तो हम युवा शक्ति के साथ और ये विचारधारा कि भाई हमें क्वालिटी तो रखनी है, लेकिन क्वालिटी रखनी है अपने टर्म्स पर, और इस टर्म्स पर जहां पर हम एक दूसरे का साथ भी दे सकें। तो अगर एक लेख निकलता है कम्युनिकेशन टुडे में, तो क्यों ना मीडिया वॉच में लिखने वाला या फिर मीडिया मीमांसा या फिर अपने सुरेश जी के जो नया जर्नल आ रहा है, क्यों ना हमारे रिसर्चर्स उन सब चीजों को साइट करें। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम ये बदलाव लाएं अपने काम में। दूसरा काम जो इवेंट्स बने, और ये तो सर जानते हैं कि वो जो पहला ऑल इंडिया मीडिया एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस था, बिल्कुल जो मैं पहले भी बता रहा था, ऑन हिज ओन रिसोर्सेज, ना तो कोई सपोर्ट था, और मुझे पता है कि वो अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके, कुछ नहीं उसमें और कोई उद्देश्य नहीं था। साथ में बाद में अपने कल्याण सिंह जी यहाँ पर हैं, और कितने सारे काम किए। वो जो आपने मुहिम तैयार की थी यूनिसेफ के माध्यम से पूरे राजस्थान में, वो आज देश के अलग अलग कोनों में चल रही है, और हमारे यहाँ भी उसका एक स्वरूप देखा जा रहा है। तो कोई भी चीज ऐसे जैसे अगर हम कहें तो कोई बेकार नहीं जाता, कोई भी चीज ऐसी इट डजंट गो वेस्ट। हर चीज का एक अपना महत्व होता है, और एक 25 साल तक जो एक संस्था चली है, और जिस विचार को लेकर आप लोग आगे बढ़े, तो हम जैसे को काफी इससे उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और हमें लगता है कि आने वाला समय खासकर मीडिया और कम्युनिकेशन एजुकेशन के लिए और भी काफी सुनहरा होने वाला है, क्योंकि इतने सारे आयाम दिख रहे हैं। डिजिटल जर्नलिज्म का आयाम है, उन सब चीजों पर बात करने का शायद अभी मौका नहीं है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, आप ना तो टायर हो सकते हैं, ना तो रिटायर हो सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा चलती रहे, ऐसी ये देखते देखते और 25 साल निकल जाएंगे, और शायद हम लोग और भी हमारे बाल सफेद हो जाए, लेकिन आपको हम इसी रूप में 25 साल बाद भी देखेंगे, और ऐसा ही एक अवसर हमें फिर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि हम अपने मित्रों के काम को साइट नहीं करते हैं, मुझे लगता है वास्तव में ये जो एक सामूहिक भावना विकसित होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र सुन रहे हैं तो मेरी बात को अतिशयोक्ति न माने, लेकिन पांडे जी को मैंने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, और जो भी फेस्टिवल्स पे इनके ग्रीटिंग्स आते हैं उसमें ये ई बुक्स भेजते हैं, और वो ई बुक्स भी, जैसे अभी तो आपने वो डिजिटल एथिक्स पे किताब भेजी है, तो किस तरह से आप इन पुस्तकों को ढूंढते हैं, और पूरी जो आपकी मेलिंग लिस्ट है, मेरे ख्याल जो आपके मेल में जो एड्रेसेस हैं, जो भी आपकी मित्र मंडली है, उनको जिस तरह से आप ये पुस्तकें भेज रहे हैं, और आज से नहीं मतलब कई साल से देख रहा हूँ, तो जिस डेडिकेशन के साथ आप अपने इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और अभी जो यूट्यूब के वीडियोस जिस तरह से आपने बनाए हैं, आधुनिकतम तकनीकी विषयों को कितनी सहजता के साथ और एक एक वीडियो के लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे युवा जो साथी हैं, शिक्षक हैं, वो यदि इस तरह से काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी टीम अपनी बन पाएगी, और एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम अंततः
जो बात केजी सुरेश जी ने शुरू में कही थी कि हम एक पूरी की पूरी इस तरह की टीम बनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद वैसा माहौल हम निर्मित कर पाएंगे। बार बार बात की गई ऑल इंडिया मीडिया एजुकेटर कॉन्फ्रेंस की, और उसकी जो मूल प्रेरणा थी, कल्याण कोठारी जी आज हमारे साथ में है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी टीम के सबसे युवा साथी कल्याण कोठारी जी हैं। वो भी रात दिन कुछ न कुछ चिंतन मनन चलता रहता है। हर 2 दिन बाद फोन आएगा, ये प्रोजेक्ट कर ले, ये कर ले, मैं वहां ये कर रहा हूँ। मुझे लगता है यही जुनून जिजीविषा शायद उनके जीवन का एक अद्भुत प्रेरणा है। और मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबा समय मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और कम्युनिकेशन टुडे को भी इनका पैट्रोनेज कोठारी जी का मुझे मिला है। मैं चाहूंगा इस अवसर पर कोठारी जी भी हमें कुछ आशीर्वाद दें। कल्याण कोठारी जी। कोठारी साहब, आपका माइक। श्रद्धेय भानावत साहब ने जिस तरह से मीडिया एजुकेशन और मीडिया एजुकेटर्स के लिए काम किया, वो पूरे देश में नहीं, कई मेरे ख्याल से कई जगह जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और मैं भानावत साहब के साथ में रह के बहुत कुछ सीखा हूँ, और भानावत साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि भानावत साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस तरह से भी बात करो उसको जिस सहजता से लेते हैं, ऐसा गुण मैंने नहीं देखा। कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो घमंड में मरे जाते हैं, लेकिन भानावत साहब जैसे प्रोफेसर इतने सहजता से, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरह से बात करते हैं। और कई बार मतलब हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने देखा कि मैं इतना छोटा और मैं मीडिया एजुकेशन में कुछ भी नहीं समझता, पर मैं कई बार भानावत साहब से नाराज हो जाता, लेकिन भानावत साहब ने कभी भी एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो खराब लगे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है भानावत साहब की कि इसको मेरे ख्याल मीडिया एजुकेटर्स को सीखनी चाहिए। मीडिया एजुकेशन में जो लोग काम करते हैं वो भानावत साहब की इस क्वालिटी को सीखें और अपनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ में कम्युनिकेशन टुडे के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कोठारी साहब, आपने जाने कितने सारे प्रसंग याद दिला दिए उस दौर के। ये सही है, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोजेक्ट के समय कई बार कोठारी जी टेम्पर लूज कर जाते थे। फिर कुछ समय बाद, उस समय तो मैं भी कुछ नहीं बोलता था, बाद में फिर जब शांत मन से, मतलब पता नहीं कितनी बार हमारी बात हुई होगी कितने मंचों पर, लेकिन देखिए यही जो कार्य करने की ताकत है कि उन सब के बावजूद हम लोग उसी आत्मीयता के साथ, उसी बॉन्डिंग के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और पूरे देश के मीडिया शिक्षकों को जिस एक मंच पर लाने के लिए मैं तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं की थी कि ये इस तरह का आयोजन संभव भी हो सकता है। उसके पीछे एक ही जो प्रेरणा थी वो श्रद्धेय कोठारी जी की थी, जिन्होंने ये इस तरह के इस पूरे अभियान को, और जैसा पांडे जी ने कहा कि अब वो उनके वो अभियान की सुरभिया पूरे देश में फैल रही है, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से यूनिसेफ के बैनर पर काम हो रहा है, मुझे लगता है कि इसके द्वार तो कोठारी जी ने ही एक तरह से खोले थे। और ये मुझे एक अद्भुत अनुभूति होती है कि उनका साथ मिला और देश के मीडिया शिक्षक, शोधार्थी और हम सब लोग एक मंच पर आकर के कहीं इस तरह के अभियानों को आगे बढ़ा सके। मुझे लगता है वैसे समय काफी हो गया है, लेकिन राकेश गोस्वामी वापस शायद जुड़ गए हैं, वो भी अपनी बात संक्षेप में कहें, उसके बाद फिर कोई और मित्र हो कहना चाहें, नहीं तो अपन इसको समाप्त करें। हाँ राकेश जी। नमस्कार सभी शिक्षकों, मीडिया शिक्षकों को, तमाम इसमें जयपुर के हमारे साथी दिख रहे हैं। राकेश जी वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है? नहीं आ रहा है? नहीं, ऑफ करके वापस ऑन करिए। नहीं वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है उषा जी। ओके परफेक्ट, मे बी मुझे नहीं दिखाई दे। ओके। अच्छा, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जम्मू में पावर आउटेज बहुत होता है, तो लाइट चली गई, तो मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हूँ बाहर बैठ के छत पे। नहीं दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, क्लियर है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी बातें कह दी हैं, तो बहुत कुछ कहने को बचता नहीं है। बस ये है कि जैसे डॉक्टर उषा साहनी ने कहा कि हम सब तो प्रोफेसर भानावत के छात्र हैं, छात्र ही रहेंगे और हमेशा आपसे सीखते रहते हैं। मेरा भी जुड़ाव इस जर्नल से काफ़ी पुराना है। और जो बात प्रोफेसर केजी सुरेश सर ने कही थी शुरू में, जो एक उन्होंने अमरकंटक की कथा सुनाई थी, तो हम तो रोज़ देखते हैं सर। आज ये कार्यक्रम होना था शाम को, तो दिन भर में कम से कम 50 बार हमारी बात हुई होगी, छोटी छोटी, मतलब जो एक होता है ना चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म। तो वो जैसे
जब ऑल इंडिया मीडिया एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उमाशंकर पांडे जी भी थे। हम सब लोग कहते थे कि हमारे इस पूरे समूह का जो यंगेस्ट मेंबर है वो कल्याण कोठारी जी हैं। तो उसी तरह से प्रोफेसर भानावत भी मतलब दूसरे नंबर के यंगेस्ट हैं, सेकेंड यंगेस्ट इन द ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर इतना उत्साह रहता है। हम लोग तो अभी उम्र में उनसे बहुत छोटे हैं, फिर भी जरा सी चीजों में कई बार थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, छोड़ देते हैं। लेकिन भानावत सर का जो एनर्जी लेवल है वो मुझे लगता है उसमें वो मीटर बना ही नहीं है जिससे वो डाउन हो जाए। कुछ ऐसी संरचना बनाई है ईश्वर ने कि वो एनर्जी लेवल का मीटर जो नीचे बैटरी जैसे डाउन होती है वो सिस्टम है ही नहीं उसमें। आप रात में देखिए, सुबह देखिए, दोपहर में देखिए, कितना भी काम हो। जब यूनिवर्सिटी में सर थे, हम लोग अक्सर जाया करते थे, जैन सेंटर की जिम्मेदारी इनके पास थी, एक कई अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां थी, लेकिन कहीं भी आप मिले, दिन के किसी भी वक्त मिले, तो वो इतनी ऊर्जा उनके व्यक्तित्व से निकलती है कि सबसे ज्यादा जो बड़ी सीखने वाली चीज है वो यही है। और ये बात सही है, शुरू में भी जो कुछ लोगों की साउंड बाइट्स प्ले हुई थी उसमें प्रोफेसर वीएन नीलिमा ने जो बात कही कि हम लोगों का तो वी ओ आर कैरियर टू कम्युनिकेशन टुडे एंड प्रोफेसर भानावत, मतलब मैं तो जैसे उन्होंने अपना उदाहरण दिया, मैं भी एक्टिव जर्नलिज्म में था, वहां से जर्नलिज्म का कोर्स करना, पीएचडी करना, नेट क्वालिफाई करना, फिर आज एक प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन होना, इस सारा का सारा श्रेय जो है वो प्रोफेसर भानावत का है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका कम्युनिकेशन टुडे की है। तो हम तो बस एक शिष्य की तरह हमेशा आपकी ओर देखते रहते हैं, आपसे सीखते रहते हैं और यही शुभकामना है कि निरंतर आप स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ऐसे ही ऊर्जावान रखे ताकि ये सफर आगे से आगे और लंबा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। वस्तुतः आप सभी मित्रों की जो ये आत्मीय स्नेह है यही शायद इस ऊर्जा का कारण है, क्योंकि जब इतने मित्र, इतने विद्यार्थी इस स्नेह सम्मान के साथ मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति कहीं थकान महसूस करेगा। आज सेवानिवृत्ति के लगभग 3.5-4 वर्ष होने आ गए, लेकिन लगता ही नहीं है। आज भी लगता है वैसी ही व्यस्तता, वैसी ही भागदौड़ और वैसा ही जुड़ाव जो सेवा काल के दौरान था। और जहाँ तक कम्युनिकेशन टुडे के अगले 25 वर्षों की आपने शुभकामनाएं की, समय का मैं कुछ नहीं पता कितना समय बचा है, लेकिन ये सही है, जैसा मैंने कहा भी था कि अपनी यथाशक्ति इस प्रकाशन को जारी रखने के लिए मैं कृत संकल्प अवश्य हूँ। और अभी मित्रों के भी इतना मतलब आलेख हैं, मुझे लगता है कि मैं मतलब साल भर कई बार लग जाता है उन आर्टिकल्स को मुझे स्थान देने में। स्पेशल इशू अभी भी मेरे ख्याल 40 के ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं और मुझे जॉइंट इशू निकालना पड़ रहा है, इतने हो। फिर बहुत सारी पुस्तकों के रूप में भी हमने सामग्री को प्रकाशित किया ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और राकेश गोस्वामी हैं, पांडे जी हैं और जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती है इसके कंटेंट को लेकर के, इवन इस फिल्म को लेकर के भी। मेरे ख्याल जब विनोद ने 3-4 बार भेजा मुझे, इसमें ये जोड़ दें, इसमें ये कर दें, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए थी कि किन मित्रों से कहूँ कि अपने वीडियोस बना करके भेजो। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। मृणाल जी वापस जुड़ गए हैं कि मेरे ख्याल कितने 10-12 साल से लगातार उनके आलेख मुझे, पूरी एक सीरीज आपने इसमें शुरू की है, ग्रेट इंडियन न्यूज़पेपर्स। और मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए ये एक बहुत बड़ा आधार हो सकता है कि इस देश के पूरे के जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं उनके बारे में। और जब जैसे ही समय होता है मैं इनको फोन करता हूँ, 2 दिन में भेज रहा हूँ, 3 दिन में भेज रहा हूँ, और बिना नागा उनके मतलब बिना किसी तरह का ब्रेक नहीं आया। तो ये लगातार जिस तरह से लिख रहे हैं, तो वैसे तो मंडाल जी समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी चूंकि आप मुझे दिखाई दे गए तो कुछ अपनी 5 सुझाव देने जी। 25 साल हो गया, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरे पास 5 सुझाव है। पहली सुझाव तो ये है कि हम अब टाइम हो गया इस मैगजीन को रीगर को थोड़ा हम इंक्रीज करें। We need to increase the rigor of the journal. सेकेंड सुझाव जो मेरा है, तो अब टाइम हो गया है कि अब तक हमारे पास आता रहा और हम उसी से लेते हैं या तो फिर एक जनरल से डायरेक्शन देते हैं। अब टाइम हो गया है शायद एक स्पेसिफिक एरिया जहां शोध की आवश्यकता है। I guess there are several areas where
more research is necessary right now, and it's not happening. In those places, probably, we have to pick up some young researchers and ask them to do research on that particular area. That is second. Third, ये मैं आजादी के अमृत महोत्सव के आंख में रख के कह रहा हूँ. We have had this tradition of having freedom fighters who also happen to be journalists. इसका एक सीरीज में लिख रहा हूँ, about 10-12, आराम से ये तो 25-30 तो आराम से ही हो जाएंगे. बट इससे मुझे ये आया कि ये तो जो है वो दिख रहे हैं. आई मीन यू गूगल यू गेट महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, अरविंद घोष है, बारिंद्र घोष है, मालवीय जी हैं, ये तो दिख रहे हैं. बाकी हर क्षेत्र में, छोटे छोटे कस्बे में, there were newspapers, small newspapers, editors of whom were not very well known persons, but they probably sacrificed everything that they had into publication of those journals, magazines, whatever. तो मुझे लगता है कि एक बार अगर हम कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास इतने बढ़िया नेटवर्क है, इतने बढ़िया पैट्रॉन्स हैं, तो एक बार अगर हम कोशिश करें तो पैन इंडिया इन विलेज लेवल, if we can get about 100 such freedom fighters who are also journalists, or vice versa, journalists who were also freedom fighters, and उस पे हम एक इशू निकाल सके, तो that will be our contribution on the occasion of platinum jubilee of our independence. ये एक मेरे दिमाग में आ रहा है. और बाकी हमने ये शुरुआत तो कर दिया है कि बुक्स on specific areas, books nikalna. That I guess now we have the, if not the financial resources, but at least human resources to compile and come up with books. Every year, let's plan one book. ज़्यादा हम ये नहीं करते क्योंकि उसमें फिर रिगर की प्रॉब्लम आ जाएगी. एक ही बुक निकालते हैं, अच्छी तरह से निकालते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि यही बुक निकालनी है, and then we assign the editing part to a team and let's do it. यही 5 सुझाव मेरे पास immediately था. जो immediately हमें I think communication today के पास वो human resource और वो network है जो हम कर सकते हैं, वो है pan India district level freedom fighter journalist की एक बायो प्रोफाइल की एक एंथोलॉजी. ये हम कर सकते हैं. थैंक यू. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद मृणाल जी, आपने बहुत गंभीरता से हमारी इस पूरी यात्रा को देखा, महसूस किया और कुछ सुझाव दिए हैं आपने. ये सही है, मेरे दिमाग में कुछ विषय थे, जैसे मीडिया लिटरेसी पे हम लोग सोच रहे थे कि स्पेशल इशू प्लान करें. अनुभूति जी जो INC में है, प्रदीप राय कुरुक्षेत्र में है, इनसे मेरी बात भी हुई थी. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ जोड़ करके अपन कुछ करें. लेकिन आपने कुछ बिल्कुल ही उपेक्षित जो विषय सुझाए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिशा में भी अपन कुछ प्रयत्न करें और आपसे भी बातचीत करके उस दिशा में अपन कुछ प्रयास करेंगे. और क्योंकि मृणाल जी से भी मेरी लगभग हर सप्ताह बात होती है और कहीं ना कहीं आगे की योजनाओं को और इसको लेकर के हम चर्चा करते रहते हैं, आपके सुझाव मिलते रहते हैं. तो सभी मित्रों ने जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया, उस जुनून और जिजीविषा को कायम रखने के लिए मुझे पता नहीं मैं उतने जिस तरह की आपने भावनाएं व्यक्त की इतना योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो यही मानता हूँ कि ये सब आपके स्नेह, प्यार और सम्मान का प्रतीक है. उसी रूप से मैं उसको स्वीकार करता हूँ. और हमारी इस यात्रा पे आप सभी की इन शुभकामनाओं के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ. निश्चित रूप से मैं बहुत अपने आप को इस समय भावुक महसूस करता हूँ कि इतने सारे मित्रों का देश भर में जुड़ाव होना, ये मेरे ख्याल मेरे इस जीवन की अद्भुत पूंजी है. शायद मैं उन सौभाग्यशालियों में हूँ जिनको इस तरह का स्नेह सम्मान देश भर में मिलता है. ये कोई पता नहीं कौन सा ऐसे कर्म है या कोई पेरेंट्स का आशीर्वाद है या मित्रों, मुझे नहीं समझ में आता किस तरह से है, लेकिन जिस तरह से मीडिया शिक्षा में मुझे स्नेह मिला है, ये मैं शायद इस जन्म में तो कभी भूल नहीं पाऊंगा. अगले जन्म का कुछ पता नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।